saw some videos also in the same line. Today, in the today's session, we are going to see milling machine. And in milling machine, again, we have done our standard practice. One very common milling machine, that is horizontal arbor type milling machine, is in front of you, and you have to give the names to various important parts. Okay. For example, this is arbor, that the name is given by them. Uh, you can again give the name very clearly here, arbor. You can see here cutter. Okay. So this is cross slide. Okay. You can see here cross slide, because this Dovital shape is shown here. It means this is the cross slide. Okay. This is the table on the cross slide, and this is that hand wheel. Okay. This is the lead screw for lifting the entire table. So height of the, according to height of the job, this table height can be moved up and down. And this is a this is up and down, means Z motion. Okay. Up and down, Z plus Z minus motion. Now this is X plus X minus motion. This entire carriage is moving over this slide. You can see here double by double line, you can see. So this entire slide is moving like that. Now you can see here the door tail shape, the upper table with T slot. This is moving cross in the cross direction. That is in direction perpendicular to the machine. Okay. That is in the cross direction. So you can get Z plus Z minus motion, that is up and down. Then X plus X minus motion, and then Y plus Y minus, that is side Y motion. All these motions can be achieved. If you put rotary table attachment over this table with and joined by T slot, even at an angle also you can cut certain milling operation. Means if this is a disc type milling cutter, okay, it is attached on the arbor of the machine. This is not going to be changing its position. You have to change the position to the workpiece. Okay. So here you can use rotary table wise, so that at 180 degree it can be moved. Also there is a universal wise, means in this plane, vertical plane also this is moving, and also there is a rocking arm motion, means it is also it can be tilted vertically, means in this direction horizontally also it can rotate, and vertical also it can rotate. So all the degrees of freedoms are given to workpiece. Mean workpiece will change its position according to the position of cutter. Hmm? Same as that of shaping. In shaping, what was happening? The cut and workpiece was stationary. Here also workpiece is stationary as per the position, and cutter is rotating. Now here in the milling cutter you have milling cutters are multiple cutting tooth cutter. So it is a multi tooth cutter. Single point tool cutter is in there in turning. In shaping also there is a single point tool, but in milling it is multi point cutter. So that we will see where now this is a horizontal milling machine, or you can say arbor type milling machine, and the various names you have to give. This is first part, and the second part is draw neat figure of milling cutter you observed in our workshop. So in our workshop, whenever you come to our workshop, we can show you this type milling cutter is there. It is already attached to that machine for sake of learning. So this type milling cutter is there. Then you have straddle milling cutter. In straddle milling cutter, in that milling cutter is a combination. Means if there is a step cutting, then top portion of that step, side portion of that step, that is cut in one rotation only. तो कटर ही ऐसा बनाते हैं ग्रुप करके कि जो पोर्शन को स्टेप ज्यादा है उसमें आपका डायमीटर ज्यादा रहेगा कटर का, जिसमें कम स्टेप है उसमें आपका डायमीटर कम रहेगा. एंड ऑल दीज cutters are joined together to become straddle milling cutter. Means in one rotation you can cut the entire thing like that. That is a straddle milling cutter. This type milling cutter, separate milling cutter or peripheral milling cutter. So it is there. So this assignment is comparatively smaller, that milling cutter attachment. So what you have to do is here you can draw this straddle milling cutter. This type milling cutter means you can give certain space, and then you can draw in that sheet.
अभी हमको मालूम नहीं कि अपना लॉकडाउन कब खुलेगा। अगर लॉकडाउन जल्दी नहीं खुलेगा तो आपको ये फिगर्स निकाल के उसका स्कैन करके हमको भेजना पड़ेगा। अगर लॉकडाउन उठेगा तो आप लोग इसी इसी का मतलब यही राइटअप का आप जेरोक्स लेके इस पे फिगर्स वगैरह ड्रॉ करके देखते हैं। इसलिए मैं अभी तक रुका हूँ। दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू टू बी प्रिपेयर विथ ऑल द मटेरियल विथ यू इन सॉफ्ट फॉर्म। तो जब भी सबमिट करने का टाइम आएगा एंड वी विल से दैट विद इन दिस डे यू सबमिट ऑल, ओके, then in that time you should be able to submit the assignments in the given folder। मैं एक अपने गूगल ड्राइव में एक फोल्डर आपको दूंगा, उसमें आप आपका फोल्डर डाल देना, आपका पीडीएफ फॉर्मेट में डाल देना एक आपका। तो आपके नाम का एक फोल्डर रहेगा, उसमें सब फोल्डर, और उसमें आपके सभी असाइनमेंट्स आ जाएंगे। मतलब वो फोल्डर मैं खोलूंगा तुम्हारे नाम का और रोल नंबर वाइज, तो आपके सभी असाइनमेंट्स उसमें मेरे को सॉफ्ट कॉपी में मिल जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा रुको, अभी मैं घाई इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आगे क्या होने वाला है कुछ पता नहीं है। तो बट यू बी प्रिपेयर विथ ऑल योर मटेरियल। अगर मतलब हार्ड कॉपी पे ये नहीं करना है तो सॉफ्ट कॉपी में टाइपिंग वगैरह करके जगह फिगर के लिए जगह छोड़ के वगैरह ऐसा आपको करना पड़ेगा। तो आपकी खुद की स्ट्रेटेजी रहेगी वो, हाउ टू सबमिट इट, ओके। तो हम लोग थोड़ा सा वीडियोस वगैरह देखेंगे अभी एज यूजुअल, सो यू विल गेट द आइडिया। तो एक हमने यहाँ पे दे दिया है, तो ये देखेंगे हम लोग। सो once you go to YouTube, you will find many such videos there only, wherever we are observing, उसी के ऊपर नीचे आपको बहुत कुछ मिलेगा। सो दैट टाइम यू कैन सी दैट। सो ये एक नया फैसिलिटी है अभी एजुकेटर्स के लिए कि आपको डायरेक्टली वो एक फील दे सके। अगर भी वर्कशॉप में नहीं जाए हम लोग, फिर भी वो, अ, कैसा रहता है वो मशीन, उसका एक हम लोग फील दे सकते हैं। हाँ, तो हम ये ऐड स्किप करेंगे अभी। सो दिस इज ई एजुकेशन वीडियो प्लेन मिलिंग मशीन। हाँ, ये देखो ये आर्बर टाइप मिलिंग मशीन मैं बोल रहा था ना, ये देखो ये मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, ये देखो। हाँ, ये देखो ये वो कटर है। हाँ, ये मशीन ये अपने कॉलेज में है, हाँ, ये मशीन। तो ऐसा ये डिस्क टाइप मिलिंग कटर, इसी फिगर्स का आपको इसकी फिगर आपको निकलनी है। हाँ, और ये आर्बर रहेगा उसका। ये ऊपर नीचे जाने के लिए टेबल, ये लॉक करने के लिए ये स्लाइड है, ये आगे पीछे होती है। और ये जो है ना टी स्लॉट वाली, ये देखो डोटेल शेप में बोला था ना, ये इधर इधर आगे होके, और वाइस में आप लोग वर्क पीस पकड़ेंगे और ये आप लोग कटर चालू करेंगे यहाँ से लीवर घुमा के, तो आपका ये चालू हो जाएगा, ग्रीन लाइट से मोटर चालू हो जाएगा। तो मैं आप हम लोग देखेंगे वीडियो, ये देखो कटर घूम रहा है। लेकिन कटर उसका पोजीशन चेंज नहीं कर सकता है, इसलिए हमको वर्कपीस ऊपर नीचे करना पड़ेगा। मींस डेप्थ ऑफ कट कैन बी गिवन बाय लिफ्टिंग एंड और लोअरिंग द वर्कपीस। सो सी वेरियस नेम्स आर गिवन, यही देख के आपको वो फिगर में आपको हाथ से वो ये करना है, लिखना है। सो वट एवर फिगर आई हैव शोन देयर, उसी का सिमिलर फिगर मैंने ले लिया है नेट से, ताकि आप बच्चों को हेल्प हो। देखो ये कैसा ऊपर किया, और अभी हम लोग वाई मोशन दे देंगे। हाँ? ऐसा हॉरिजॉन्टल, सॉरी, हाँ जेड मोशन, वाई एक्स मोशन एंड वाई मोशन, करेक्ट। ये ऐसा घुमाएंगे हम लोग, हैंडविल घुमाएंगे ऐसा, ये हैंडविल ऐसा घुमाएंगे तो ये पूरा टेबल इधर आएगा। हाँ, तो कटिंग एक्शन चालू होगा, आप लोग देख सकते हैं। देखो मिलिंग कटर आर्बर देर शोएंगे, देखो। हाँ, देख लो अभी। हाँ, ये देख लो, स्पिंडल, स्पिंडल भी कहते हैं, आर्बर भी कहते हैं इसको। हाँ, तो ये डेप्थ ऑफ कट अप्लाई होने के बाद ये हर एक कटर थोड़ा थोड़ा कट करेगा तो भी एकदम स्पीडीली, इसका स्पीड बहुत ज़्यादा रहता है। मतलब द रेट एट विच मटेरियल इज कट इज मोर, क्योंकि एक टूल पे लोड नहीं आता है ना,
देयर आर मल्टीपल कटर. ओके, एक ही डिस्क में ऐसा मिलिंग कटर में मल्टीपल कटर्स आर देयर. Again, they are showing from all angle. This is a very good animation. फिर से दिखा रहे हो, एडजस्ट करके ले लिया जॉब का पोजीशन एक्स वाई जेड एडजस्ट करके, एंड नाउ दे विल अप्लाई द motion to the job. The job is moving here and tool is rotating. In shaping, job is stationary and tool is reciprocating. In turning, job is rotating and tool is moved forward. So that this was about milling machine. This was about that first question. Okay, first question और उसका सब nomenclature वगैरह. मिलिंग मशीन ऑपरेशंस हम देखेंगे और बाद में कटर देखेंगे हम लोग. पहले मिलिंग मशीन ऑपरेशंस भी थोड़ा स्टडी करो. That is worth to see. Now, since syllabus is very big, we couldn't directly put this value in one of the modules. क्योंकि 2-3 सब्जेक्ट कंबाइन करके ऑलमोस्ट 2-3 क्या 4-5 सब्जेक्ट कंबाइन करके PE1 बनाए, तो इसको हमने प्रैक्टिकल में डाल दिया. So you can see this multi-point cutter, okay, and some are helical cutter, okay, some are straight cutter. हेलिकल कटर बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, स्किल जॉब है. और हेलिकल कटर का फायदा ऐसा रहता है कि आपका ग्रेजुअली लोड अप्लाई होता है, सडनली फेस पे अप्लाई नहीं होगा. कटर पे ग्रेजुअली एंगल होने के कारण ग्रेजुअली लोड अप्लाई होगा, तो ज़्यादा लोड नहीं आएगा कटर पे. ये फायदा है हेलिकल टाइप कटर का. मतलब जो कटर के जो पॉइंट्स है ना वैसे हेलिकल रहेंगे, जो इसमें दिखा है अभी. यू कैन सी सम मोर. ये देखो फेस मेलिंग. दिस इज नोन एट फेस मेलिंग. वो क्या था पहले हमने देखा, वो सिलिंड्रिकल मेलिंग था और स्लैब मेलिंग पहला सिलिंड्रिकल मेलिंग था. ये फेस मेलिंग, यानी अभी क्या है कि अपना जो एक्सिस है ना इसका सेंटर में है कटर के, और वो पूरा फेस पे मेलिंग कटर का फेस घूमता है. फेस मेलिंग, you can see this is face milling. The earlier was cylindrical milling, this is face milling. लेकिन फेस मिलिंग कटर अपने शायद नहीं देखना पड़ेगा एंड मिलिंग कटर, लेकिन मैंने जो लगाया हुआ वो देखा सिलिंड्रिकल मिलिंग, इसलिए आपको जो जो दिखाया वही लिखना है, इसलिए हम सिलिंड्रिकल मिलिंग चूज किया. मे बी इन द नेक्स्ट ईयर वी विल चेंज आवर फेस मिलिंग कर. दिस इज स्ट्रैडल मिलिंग. ये देखो बच्चों, मैंने बोला था ना स्ट्रैडल मिलिंग एक साथ, हाँ, मतलब साइड मिलिंग भी होगा और ये पेरिफेरल मिलिंग भी होगा. ये देखो, ये देखो, ये जो कटर है ना, तो ये पोर्शन है ना, यहाँ से भी कटिंग होगा और साइड से भी कटिंग होगा. हाँ? तो मतलब शेप कैसा होगा, ऐसा ऐसा ये ऐसा ऐसा, मतलब ऐसा एक साथ ही बहुत से फेसेस, मतलब 3 फेसेस आपके कट हो सकते हैं. सॉरी 4, 1 2 3 4. तो ये स्ट्रैडल मिलिंग ऑपरेशन आप देखो. तो ये भी कटर अपने पास कॉलेज में स्ट्रैडल मिलिंग. अब ये एनिमेशन है इसलिए कंप्लीट घुमा नहीं रहे हैं, उसको जस्ट 1-2 मोशन उन्होंने दिए है. आप समझ जाओ इट इज रोटेटिंग. ये देखो स्ट्रैडल मिलिंग. ये जो स्टेप्स बनाने के लिए स्ट्रैडल मिलिंग बहुत काम आ जाता है. एक साथ ही मशीन सेट कर लो एंड डू द ऑपरेशन. और इसी का थोड़ा सा डेवलपमेंट आगे गैंग मिलिंग. एक साथ आप बहुत से ऑपरेशन कर सकते हो, क्योंकि आर्बर एक ही है, तीनों एक साथ घूम रहे हैं और जॉब आपका आगे आ रहा है और एक साथ तीनों कट हो रहा है. ये देखो व्हाट अ ब्यूटीफुल. ये एक साथ ये मशीन. हाँ, बाद में समझो इसकी डेप्थ बढ़ानी है तो इसको और इसको निकल दो, और जो अभी खाली ये बचेगा ना, तो वो टाइम
जेड जेड पॉजिटिव करो, यानी वो टेबल ऊपर लाओ, तो यू कैन गेट दैट मच स्लॉट आल्सो इन डीपर. दिस इज फॉर्म मिलिंग. ओके, ये फॉर्म मिलिंग है. फॉर्म यू फॉर्म का अगर आपको शेप चाहिए तो आप ये भी कर सकते हो. देखो, सो यू फॉर्म, फॉर्म मिलिंग, जो जो शेप आपको चाहिए उसी शेप का मिलिंग कटर यहाँ पे बनाएंगे हम लोग. So that the same form is given on the milling. This is end milling cutter. It looks like drill, but it is not drill. It is like end milling cutter. ये end milling, ये slot वगैरह बनाने के लिए काम आ जाता है end milling cutter. end milling का ये पेरिंग से एज एज. सर आपका आवाज कट हो रहा है. हाँ, पर वो उनका म्यूजिक है ना, वो जरा कम करता हूँ मैं. हाँ, एक मिनट. हाँ, उनका आवाज ही बंद किया मैं. जस्ट अ मिनट. सी, now is it audible? Must be, I think. यस सर. हाँ, वो क्या हो रहा था कि उनका भी उधर म्यूजिक चालू है ना, वो यूट्यूब का, तो उसमें वो सब ये हो रहा था. नाउ यू सी, दिस इज एंगुलर मिलिंग. यू कैन सी द एंगुलर शेप ऑफ कटर. द सेम फॉर्म is replicated on your workpiece. You can see here, but depth of cut is taken step by step, otherwise cutter will break. T slot milling. तो ये भी एक कटर है. तो ऐसा स्ट्रेट आर्बर रहेगा इसमें, और अपना, और लास्ट में ऐसा कटर रहेगा, और आप साइड से ऐसा इसमें जाओगे वर्कपीस में, तो आपका टी स्लॉट्स भी बन सकता है. टी स्लॉट कैन बी मेड. ओके, ये देखो, ये जिग्स फिक्सचर में कभी कभी टी स्लॉट बनते हैं ना, टेनॉन बोल्ट पकड़ने के लिए, तो ये टी स्लॉट तैयार करने के लिए जिग्स फिक्सचर में इसका यूज होता है. सो दीज आर सम ऑफ द ऑपरेशंस. नाउ आई विल शो यू डिस्क टाइप मिलिंग कटर, जो आपको ड्रॉ करना है. डिस्क टाइप मिलिंग कटर मैं टाइप करूंगा. ओके, तो डिस्क टाइप मिलिंग कटर, ये क्या आया भाई? हाँ, टाइप्स ऑफ मिलिंग कटर, ये एक है अभी. हाँ, अलग अलग मिलिंग कटर उन्होंने दिखाया है अभी. हेलिकल वगैरह है. एक मिनट, ये देखो, प्लेन मिलिंग कटर, ये डिस्क टाइप मिलिंग कटर है ना, प्लेनिंग मिलिंग कटर. आपको ये निकालना है, इसका फिगर निकालना है आपको. प्लेन मिलिंग कटर और डिस्क टाइप मिलिंग कटर. ओके, तो दिस इज योर फिगर. एक्चुअली अपने आर के इसमें हजरत चौधरी, ये देखो, ये उसका ये एक व्यू है, और इसका साइड व्यू में आएगा ऐसा, एक ऐसा छोटा सा रेक्टेंगल आएगा, मतलब उसका थिकनेस यहाँ पे दिखाएंगे. क्योंकि देखो, ये इसका हमने अभी किधर गया ये? हाँ, जस्ट अ मिनट. हाँ, ये देखो, ये थिकनेस है ना, ये थिकनेस मतलब एक छोटा सा रेक्टेंगल आएगा साइड व्यू में. तो आपको ये दो व्यू निकालना है इसके प्लेन मिलिंग कटर के. दिस इज द फ्रंट व्यू. और आप बोलेंगे सर ये क्या है बीच में? तो ये आर्बर पे बैठने के लिए, वो आर्बर पे बैठा था मिलिंग कटर बैठा था ना अपना, तो आप थोड़ी देर पहले हमने देखा. और ये आप बोलेंगे ये क्या है? सो दिस इज नोन एज की वे. ओके, सो दिस इज द की स्लॉट. की स्लॉट, तो की वे और की स्लॉट. तो ये ऐसा इसलिए रहता है कि इसका आधा पोर्शन वो आर्बर में आधा पोर्शन है ऐसा स्लॉट. आर्बर में भी ऐसा स्लॉट है, और इसमें भी ऐसा स्लॉट है. तो उसमें की हम लोग ठोकते हैं ऐसा, प्रेस करके ऐसा की उसमें इंसर्ट करके. तो वो की क्या करेगी? दैट की विल अटैच दिस कटर टू दैट आर्बर. मतलब आर्बर में भी ऐसा पोर्शन होने से, और बीच में अगर हमने लॉकिंग की लगाई, तो वो दोनों कटर को लेके घूमेगी. आप समझ रहे हैं ना बच्चों? आर यू इमेजिनिंग? हाँ, आर्बर यानी शाफ्ट पे भी एक ऐसा की वे है, और इसमें भी एक की स्लॉट है. तो दोनों जब की से जोड़ेंगे हम लोग, साइड से ऐसा की मारते हैं उसको, साइड से ऐसे अंदर डालते हैं, तो वो दोनों को लॉक करेगी. कटर विल बी लॉक्ड टू आर्बर. ओके, आर यू गेटिंग? प्लीज रिस्पॉन्ड. खोलो अपना माइक. यस सर. Oh, यस सर. Yes, then sir. we will complete this video. It's quite interesting. Various types of milling cutters can be seen. ये cylindrical one अपने काम का है फिगर के लिए.
आप किसी किसी भी इसमें जाओ, गूगल में मिलिंग कटर फिगर, तो अपने को आप विकिपीडिया में जाओ, आप गूगल में जाओ, तो आपको इससे भी बेहतर बेहतर फिगर मिलेंगे। सो चॉइस इज योर्स। अभी हजरा चौधरी होता तो मैं मेरा खुद का कॉपी दे देता, लाइब्रेरी में एम्पल कॉपीज है। अगर कोई लाइब्रेरी जा सकता है घाटकोपर के नजदीक, एक रोड़े वाला, तो लेके आओ जाके। फर्स्ट इंक्वायर की चालू है क्या नहीं सब। बुधवार को तो चालू था। स्टैगर्ड टीथ साइड मिलिंग कटर, ये देखो ये साइड मिलिंग भी हो रहा है, मतलब पेरिफेरल मिलिंग हो रहा है और साइड मिलिंग भी हो रहा है। यही वो स्ट्रैडल में यूज होता है ना, साइड का भी पोर्शन में कटर है और पेरिफेरल में भी है। तो एक साथ साइड और पेरिफेरी दोनों कट होता है। इंटरलॉकिंग साइड मिलिंग कटर मतलब दोनों एक दूसरे के साथ जोड़े हुए हैं। या आधे पोर्शन का अलग है प्रोफाइल, दूसरे का अलग है। सो दिस इज इंटरलॉकिंग टाइप। ये अलग अलग कटर्स है अवेलेबल। हमने तो दो ही पूछे, आपके नॉलेज के लिए यहाँ पे भरपूर है। सो दिस इज मेटल स्लिटिंग कटर। ये एज गुड एज बैंड सॉ जैसा, मतलब ये स्लेटर, ये सुदर्शन चक्र जैसा है मेटल स्लिटिंग कटर। यानी ये सीधा कम थिकनेस का एक कट मारता है, तो ये बड़ा खतरनाक है, मतलब कट कर देता है वर्क पीस को। एंगुलर मिलिंग कटर, ये अभी थोड़ी देर पहले हमने इसका एक वीडियो देखा था, एंगुलर मिलिंग कटर। ओके, बाद में और देखेंगे क्या क्या दिखा रहे हैं ये। वो एंड मिलिंग वगैरह दिखाएंगे बाद में, फेस मिलिंग कटर दिखाएंगे। तो ये, तो दिस इज एंगल मिलिंग कटर। सिंगल एंगल मिलिंग कटर एक साइड में, ऐसा ही डबल साइड में रहेगा तो डबल एंगल रहेगा। एंगुलर मतलब उसका पेरीफेरी एंगुलर है, स्ट्रेट नहीं ऐसा। तो जिस एंगल का कटर है उस वही एंगल फॉर्म होगा वर्क पीस पर। डबल एंगल, दोनों दोनों साइड का एंगल है। इधर भी है इधर भी है, डबल एंगल कटर। तो वो फॉर्म होगा। अगर वी फॉर्म डायरेक्ट मारना है तो ये अंदर इससे मशीन कर लो, आपका डबल वी आ जाएगा। दिस इज एंड मिलिंग कटर। ये ड्रिल जैसा दिखता है बट इट इज नॉट अ ड्रिल। ओके, दिस इज यूज टू मेक द पेरीफेरी। एक बड़ा अगर थिकनेस आपको साइड, बड़ी साइड है अगर जॉब की, तो उसको अगर आपको ये करना है, कट करना है, तो इसका फायदा होता है। प्लस कोई स्लॉट वगैरह बनाना है उस शेप का, फिर भी वो उसका यूज होता है। अलग अलग कटर्स है। इफ यू गो टू इंडस्ट्री यू विल ऑब्जर्व ऑल दिस शेल टाइप मिलिंग कटर। या आर्बर पे लगता है, वो जो हॉरिजॉन्टल आर्बर मशीन था ना, उस आर्बर पे इसको लॉक कर देते हैं। ऑफ कोर्स की वे विल भी दे, देखो ये आधा की वे उसमें शाफ्ट में और आधा की वे इसमें, दोनों में एक की ऐसा डाल के हैमर से थोड़ा सा मारने के बाद एकदम पक्का निकल जाता है। वैसा ही उसको, उसका थोड़ा पोर्शन बाहर रखते हैं, बाद में निकलेगा कैसा की, तो थोड़ा सा ऐसा ऐसा पोर्शन उसका बाहर निकलते हैं, स्टेप्ड रहता है, उसको फिर उल्टा ऐसा मार के हैमर से उसको निकाल सकते हैं। दैट यू कैन डू इट। ये देखो ये स्लॉट उसका बीच का, ये दिखा है कॉन्वेक्स कॉनकेव मिलिंग कटर एज पर, that is nothing but form milling cutter. Okay, so these are various types of milling cutter that we saw, and now we will go to your this one। ये कौन सा है देखता हूँ एक बार, उस समय मैंने एक सिलेक्ट किया था, कौन सा है देखेंगे इसमें। ये अभी जो हमने पहले सिलेक्ट किया था वो दिख रहा है अभी, मिलिंग ऑपरेशन इन 3D एनिमेशन। ये एनिमेशन था इसलिए हमने ले लिया, तो बिकॉज कॉलेज का इंस्ट्रक्शन था ना सिमुलेशन। सिमुलेशन एंड एनिमेशन इज सेम। सिमुलेशन में अपने को भी वो ऑपरेट करने का ये रहता है, कमांड रहता है, वो एनिमेशन में नहीं रहता है, इतना ही फर्क है। बाकी सिमुलेशन करने के बाद, कमांड देने के बाद वही होता है जो एनिमेशन में दिखाते हैं।
So you can see here how this plain milling cutter and this milling is operation can be done. That you can see. See the operation is going on. The cutter is rotating and cross motion is given by cross slide to the machine. और देखो ये कट हो गया. पहले थिकनेस इतना था, अभी थिकनेस इतना रहा. ये पोर्शन पूरा कट हुआ कि नहीं? So this is known as depth of cut. Okay, this is known as depth of cut. Accordingly depth of cut अगर ज्यादा है तो आपका RPM थोड़ा लिमिटेड रखना पड़ेगा, अदरवाइज कटर पे लोड आएगा. आसान. You can see this. अप मिलिंग एंड डाउन मिलिंग नाम का एक टाइप है इसमें. अप मिलिंग क्या होता है मैं बताता हूँ आपको. दोनों साइड दोनों टाइप से मिलिंग होता है. ये देखो ये अप मिलिंग है. ये जब कटर घूम रहा है, ऐसा ऐसा घूम रहा है ये कटर, ये डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और अपना वर्कपीस उसको फेड हो रहा है ना, मतलब सामने के साइड से, कटर के सामने के साइड से वर्कपीस उसको फीड हो रहा है, तो उसको कहते हैं अप मिलिंग. और डाउन मिलिंग ऐसा है कि पहले कटर पास होगा और उसके ऊपर से हम लोग मिलिंग कटर ऐसा ये करेगा. ये देखो ये उल्टा, मतलब पहले केस में वर्कपीस राइट से लेफ्ट को आ रहा था, ये केस में लेफ्ट से राइट को जा रहा है. तो ये डाउन मिलिंग क्या कर रहा है, व्हाइल गोइंग डाउन द कटर इज कटिंग. वो केस में क्या था अप मिलिंग में, व्हाइल मूविंग अप इट वाज कटिंग. देखो एक मिनट मैं अभी फिर से बताता हूँ आपको. ये देखो ये अप मिलिंग में क्या होता था, while moving up the cutter was cutting. और ये डाउन मिलिंग ये देखो while moving up the cutter was cutting the workpiece, that is milling operation. And in down milling, while moving down the cutter is cutting the doing the machining operation. That's why up milling, down milling. इसकी जो डिटेल्स है ये बुक्स में बाद में आप देख लो कि किसके कितने फायदे तोटे क्या है. दोनों ऑपरेशंस एक्चुअल प्रैक्टिस में होते हैं, जिसको जैसा सूटेबल लगे. ओके, इन सम केसेस अप मिलिंग भी चलेगा, डाउन मिलिंग भी चलेगा. डाउन मिलिंग का एक ऐसा फायदा होता है कि जो भी लोड आता है ना वो नीचे टेबल की तरफ जाता है. कटिंग का जो लोड आता है ना तो वो टेबल की तरफ आता है. एंड जॉब डजंट ट्राई टू लिफ्ट, तो ज़्यादा क्लैंपिंग की जरूरत नहीं पड़ती. जो भी प्रेशर आ रहा है ऊपर से नीचे आ रहा है तो वो टेबल खुद सहन कर लेगा ना उसको, और रिजिडिटी ज़्यादा रहता है. ये फेस मिलिंग ऑपरेशन देखो, ये स्टार्ट में हमने एक वीडियो में देखा था ना, ये फेस मिलिंग ऑपरेशन. So it's quite interesting. What I tell you, all these videos these are given here that are एकदम selective है. मतलब मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ these are the best, you can also search best, लेकिन अपने क्वेश्चंस के हिसाब से और आंसर्स के हिसाब से वो बेस्ट वीडियो मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया, एनिमेशन वगैरह. यू आर फ्री टू सी एनी अदर. बेसिकली वी हैव टू राइट. सो देखो डिस्क टाइप मिलिंग कटर, ये हमको निकलना है, सर्कुलर और उसका साइड में. देन स्ट्रैडल मिलिंग कटर, ये साइड में एक कटर ऐसा रहेगा, फिर वो आर्बर में दूसरा एक रहेगा, उसमें साइड में भी कटिंग ये दिखाना पड़ेगा, और आपको फेस पे भी दिखाना पड़ेगा, मतलब पेरीफेरी पे भी दिखाना पड़ेगा. सो गाय मत करो अभी तक लिखने का. समझो हो सकता है 15 सितंबर का वगैरह कॉलेज खुला, समझो तो हम लोग हाजरा उधर ही देख के वो कर सकते हैं. या फिर ऐसा भी हो सकता है अपने बैच बड़ी है तुम्हारी